So starting with Jiddu Krishnamurti, one of the most complex uh, Indian idealist. Uh, I can recall one of my students came to me and said, either I am mad or he is mad. But if you, what we have done actually with all the idealists, we have uh, framed all of them in context of idealism. But you must, yesterday also I have reminded you, do not think that they are some kind of follower of idealist philosophy, and that has originated in Western countries. What is I have just connected the central idea. All the idealists they talk about the reality that is some reality that is hidden to us, some kind of spirit it may be, or something that is beyond the material. There are various ideas in Western philosophy. What is the idea? The idea about idea also varies. So it is some form of thought or some form of abstraction form that you have read when we talk about Plato. You have read about forms. So there are many various ideas. What we have tried to do in Indian context, we have all the philosophers who are devoted to this idea of spirit. But what they have said, and then you will find so much of difference across them. Uh, like today, we are going to read about J. Krishnamurti. Now, he will call upon uh, dropping all the dogma. That include everything. Even none of the uh, Indian text is needed. Indian books like Gita and Upanishad, none of those are needed. So we will see how and why and there is a certain background for that. He's rearing up as uh, he was reared up by theosophist. If you should read his story in today I saw it is written in good detail in Wikipedia, and all his early life is given there, and how uh, he was perceived by some uh, person who can read aura. Aura, if you know, I don't know if you know it about aura or not. Aura is something, a kind of subtle light that is across a human body. And many people claim to see that aura, and they can give their, they can infer from that aura about your character, orientation, and even diseases. What is the state of your body? So the aura colors can uh, give information about a number of things. So some uh, theosophist aura reader, he saw this boy. He was a boy. His father has joined as a clerk in the theosophist ऑफिस यू नो इट वाज इन मद्रास में थियोसॉफिस्ट का ऑफिस था अडयार में, और वहाँ पर क्लर्क के रूप में इनके पिता ने वहाँ ज्वाइन किया। पहले वो ब्रिटिश कर्मचारी थे, यानी अंग्रेजों के मातहत काम करते थे किसी ऑफिस में। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद ही ज्वाइन एज क्लर्क एट अडयार, जो थियोसॉफिस्ट का ऑफिस था, वहाँ ज्वाइन किया। तो समवन saw someone means that particular aura readers identify this boy and his brother.
Nitya. So Krishna and Nitya, two were very close. And he was, I think, sixth son of his father, and he was Nitya was also seventh, or I think he was uh, elder to him. I don't remember. But two were very close, and the two were identified by Annie Besant, and she took guardianship of the two, and so much so that uh, his father has to file a case in court to claim for the guardianship, but he could not win against her, and the theosophist keep the guardianship. That means the any Besant keep the guardianship of this the two, Nitya and Krishnamurti. So, and then लेकिन अगर आप उनके अर्ली लाइफ को देखेंगे तो ही वाज लाइक थिंग्स वाज सो मच डिफरेंट फॉर हिम. एक कंट्रोवर्सी आती है, और आई एम टेम्पटेड टू शो यू द थिंग्स दैट इज रिटन देयर, बट आई थिंक यू शुड रीड बाय योरसेल्फ द विकिपीडिया आर्टिकल. वहाँ लिखा हुआ है कि he used to have no thoughts, no image, no vision, anything, nothing like we think. We have thoughts in our mind, we have images in our mind, but he never used to have those. And that's why when someone asks, he used to listen, he used to see, but he cannot respond. So he was thought to be a very bad kind of a student, a poor kind of a student, mentally retarded child maybe. And that's why he was beaten up in his school, and his father also used to beat him. And then this fellow identified Krishnamurti as someone who is especially gifted, and he has a very specific kind of aura, without a tinge of selfishness. That is what that aura reader said. इनके aura में जरा सा भी selfishness का टच नहीं. तो फिर उनका ग्रूमिंग शुरू हुआ, फिर उनको स्पेशल ट्यूशंस दिए जाने लगे. तो फिर अगले 6 महीने में 6-7 महीनों में इन्होंने इंग्लिश पर कमांड किया. फिर कई और भाषाएं कुछ काफ़ी इस पर मतलब अच्छी फ्लुएंसी में उन्होंने कई और यूरोपीय भाषाएं इन्होंने सीखी. और फिर ये इंग्लैंड भी गए, वहाँ भी इनका एजुकेशन हुआ इन दोनों का. और फिर ये सब प्रोसेस चला. फिर थियोसॉफिस्ट लोगों ने घोषणा की कि अब मास्टर वर्ल्ड गुरु हैज कम, एंड ही हैज जॉइंड अस. और एक समय आएगा कि वो हम लोग उसको ग्रूम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और एक समय आएगा जब वो दुनिया के सामने प्रकट होगा. उसके लिए एक अलग से अमेरिका में एक आश्रम बनाया गया. उस आश्रम में वो रहते थे, और वहाँ पर थियोसॉफिस्ट लोग बराबर विजिट करते थे. उनके इसमें वो निरीक्षण में वहाँ पर उनका पालन या जो कुछ भी हो रहा था, जो भी वो अभ्यास थियोसॉफिस्ट सजेस्ट करते थे. फिर उसी दौरान जो इनके भाई थे नित्या, वो बीमार पड़ गए, और वो वहीं पर रह रहे थे, और अमेरिका में एक ऐसी जगह पर जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हो गए थे. तो जहाँ पर उनका हेल्थ का अच्छा हो सके, इसलिए पहले आपको मालूम है ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होने पर लोग पहाड़ों पर या किसी बहुत ही नेचुरल प्लेस में जाते थे, और ये माना जाता था कि यहाँ से तपेदिक ठीक हो जाता है. तो उसी तरह से वो वैसे एक जगह पर रह रहे थे, और वहाँ एक आश्रम भी था, और जो कि ये माना जाता था कि ये गुरु जो वर्ल्ड टीचर आने वाला है उसको तैयार करने के लिए इसको सेट किया गया. तो पूरा एक फैन फेयर इसके अराउंड में बना हुआ था. और फिर वहीं पर इनको कुछ अनुभव होने शुरू हुए, जो अनुभव बिल्कुल अलग तरह के थे. जो थियोसॉफिस्ट लोग अनुभव सोच रहे थे, ये कोई पारा नॉर्मल टाइप का एक्सपीरियंस होगा, जिसमें
यू नो द नॉर्मल थिंग्स क्या होता है, जिसमें दूर की चीजें इनको सुनाई पड़ेंगी या कुछ दिखाई देगा या कुछ पावर पावर इनमें दिखने लगेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनको जो अनुभव हुआ, ये आंतरिक अनुभूति हुई, कुछ गंभीर अनुभूति हुई, जो कि उनके पूरे जीवन काल में उस तरह की अनुभूति बार बार उनको होती थी, जिसमें कि वो ही हैड सर्टेन विजन्स, और वो विजन्स होते थे। और उसी दौरान जब इनको ये विजन शुरू हुए थे, उसी दौरान इनके ब्रदर जो नित्या थे, उनका डेथ हो गया। और वो डेथ होने के बाद से इनका थियोसॉफिस्ट इससे पूरे तौर पर कट हो गया, क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस भी अलग तरह से हो रहा था। जो लोग वो उनको बताया गया था कि आपके साथ ये होगा, वो वैसा नहीं हो रहा था, कुछ और हो रहा था। और दूसरा कि उनको ये भी कहा गया था कि नित्या इज योर कंपेनियन, है ना, जैसे कि कृष्ण के साथ बलराम आए थे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि हर एक जो टीचर आते हैं तो उनके साथ कोई एक आता है जो कि उसके काम में सहयोग करता है। एंड ही वॉज एक्चुअली अटैच टू नित्या, बहुत बहुत ज्यादा अटैच थे। और फैमिली से, क्योंकि वो फैमिली से उनको अलग कर दिया गया था, तो फैमिली का केवल एकमात्र वही व्यक्ति था। तो इट वॉज वेरी वेरी इमोशनली वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हिम। एंड लगभग 15-20 दिनों तक इस बात से वो काफी दुखी रहे थे। लेकिन फिर जैसा कि रिपोर्ट है कि 15-20 दिन के बाद इस चीज से वो पूरी तरह बाहर भी हो गए। तो और फिर उन्होंने वहां पर उस आश्रम को बंद कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि ये सब ऐसा जो कुछ फैन फैन पेयर किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना है। और जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसको आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप ये सारे डॉगमास जो हैं, इसको आप त्याग दीजिए, इन सब से बाहर निकलिए। तभी आपको रियल ट्रूथ की ओर आपका मूवमेंट हो सकता है। तो दिस वाज a kind of shock for all the theosophists, and I think any patient said that कि जो गुरु आने वाले थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ये गुरु ये नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। और फिर थियोसॉफिस्ट लोग अलग हट गए। उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया इनका कि आप धोखेबाज हो, आप ये क्या कहते हैं, आपने दगाबाज, या वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आसान फरामोश टाइप के शब्द जो होते हैं, वो सब उन्होंने इनके लिए इस्तेमाल किया कि हम लोगों ने ग्रूमिंग आप किया, आपका, और आपने ऐसा किया। तो जो भी हो, कृष्णामूर्ति डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट। और फिर उन्होंने अपना वो प्रचार करना शुरू किया। और फिर वो थॉट्स जिसके बारे में हम आइडियलिज्म के बारे में बात करेंगे वहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड मैंने मुझे लगा कि इसलिए जरूरी है कि इससे एक दो तीन बातें इस कहानी से और इस पूरी इनके लाइफ के हिस्ट्री से समझ में आती है। एक जो हम लोग पहले भी बार बार कह चुके हैं कि इंडियन जो आइडियलिस्ट हैं, वो थॉट प्रोसेस पर, विश्लेषण पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। यानी उसका कोई एक सिस्टम होगा जिस उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि इस मामले में जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ज्ञान योगी थे, और इनका एम्फेसिस इसी चीज पर था कि जो चीज जैसा है उसको क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज इसमें इनका यूनिक है। लेकिन फिर भी इन्होंने जब ये कहा कि डॉगमा को हम लोगों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें ये बात आ जाती है कि जो डॉगमा की जब बात आती है, तो जो भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, जो कैनन्स हैं हमारे, जैसे गीता है, या जो वेदांत है, या दूसरे जो दर्शन है, उन सबको रिजेक्ट करके, वेस्टर्न फिलोसफी के बुक्स को रिजेक्ट करके, ही सिंपली सेड कि हमें अपने ओपन माइंड के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उन्होंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से स्थापित किए, अभी भी वो चल रहे हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन उसको रन करती है। और आज हम लोग देखेंगे कि उसमें हालांकि चीज़ें कई बार आपको रिपीट होती दिखेंगी कि जब कृष्णमूर्ति की बात करते हैं आइडियलिज्म की, और जब हम उसके एजुकेशन की बात करते हैं, और फिर जब उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या यूनिकनेस है उसकी बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है। लेकिन ये सब उनके आइडियल्स थे, और उस आइडियल के हिसाब से उन्होंने अपना जो
एजुकेशन के संबंध में उन्होंने बिल्कुल ज़्यादा क्लियर रूप से राय राय रखी। और ये जितने भी लोगों को हमने देखा है आज इस कोर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन के वजह से एजुकेशन पर फोकस्ड व्यक्ति हैं। क्योंकि बाकी सारे लोगों के पास जो दूसरे एजेंडा थे, महात्मा गांधी के पास आज़ादी का एजेंडा था, भारत की आज़ादी का एजेंडा था, साथ साथ समाज निर्माण का एजेंडा था। विवेकानंद के साथ भी उस तरह से ही बड़ा एजेंडा था स्पिरिचुअलिस्ट इसका। हालांकि उन्होंने भी रामकृष्ण मठ की स्थापना की, उसमें मठ के अंदर फिर बाद में एजुकेशन के डायमेंशन भी आए। लेकिन इनका इनके साथ एक खास ये है कि ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि कैसे स्कूल रन होना चाहिए। और इन्होंने कई स्कूल खोले, जिसमें इन्होंने खुद से 5 स्कूल भारत में खोले थे, एक इंग्लैंड में और एक अमेरिका में, 7 स्कूल खोले थे। और ये सारे स्कूल अभी भी रन कर रहे हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति के बारे में दलाई लामा ने कहा है कि जो उनकी टीचिंग्स है वो उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये पूरे ह्यूमैनिटी के अनुभवों का एक्सप्रेशन है। ये मतलब ये उनका जो थॉट्स है, उनकी जो टीचिंग है, वो इस रूप में व्यक्त हुई है कि कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड ओवर, कोई भी व्यक्ति उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके साथ जोड़ सकता है। ही एड्रेसेस ऑल अस, अस ऑल, हम सभी लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, मतलब कि उनकी बात में इस तरह की गहराई है। तो जो करंट दलाई लामा है उनका एक, और जनरली हम लोग भी ये मानते हैं कि किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का सर्टिफिकेट कोई दूसरा स्पिरिचुअल व्यक्ति ही देता है। ओके, तो ये थियोसॉफिस्ट सोसाइटी की कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी हुई। और अब हम लोग उनकी आइडियलिज्म की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला उनका एम्फेसिस है वो सेल्फ इंक्वायरी पर है, कि वो जो भी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है वो सेल्फ के इंक्वायरी से शुरू होता है। अब ये आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो ज्ञान मार्गी लोग हैं वो बेसिकली सेल्फ इंक्वायरी से शुरू होते हैं और अपने थॉट्स का, इमोशन का, बिलीफ का डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रू नेचर है वो समझ में आ जाता है ना, और उससे वो उससे मुक्त होने लगते हैं। तो ये एक तरह से ध्यान की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो भी आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, उसको रूट में जाके उसके रूट को समाप्त करके एक एक करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसलिए ध्यान योग सॉरी ज्ञान योग जो है वो सभी योगों में सबसे कठिन कहा जाता है। और विशेष तौर से जब हमारे समय की बात आती है, जब यानी अगर ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी को हम यूज करें तो इसको कलयुग कहा जाता है। तो इस कलयुग में ये एक ज़्यादा माना जाता है कि ये एक अ, ज्ञान योग जो है कठिन, बहुत कठिन तरीका है, क्योंकि इसमें आप सब चीज़ से अपने आप को कट करके कहीं एक जगह रह के आप ये नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे आम लोगों के लिए। हालांकि बहुत सारे ज्ञान योग के बहुत सारे लोग अ, हुए, और एकमात्र इसका आश्रम आपके झारखंड में देवघर के पास है, जो सांख्य योग का एकमात्र इसका मठ जो है पूरे भारत में वो अ, यहाँ पर है। और उसमें जो उसके मुख्य संस्थापक थे वो हमारे आज़ादी के दौरान हुए थे। और उनका उनका तो कई लोग हुए हैं ज्ञान मार्ग में, सांख्य योग के मार्ग को चलने वाले, उसको लाइफ में जीने वाले। लेकिन इसको माना जाता है कि ये एक कठिन कार्य है, जिसमें कि आप सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, अपने आइडियाज और इमोशंस के रूट को पहचानने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसमें है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग। अब ये फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग का मतलब है कि जो सोसाइटल और कल्चरल कंडीशनिंग है उससे फ्री होना, उससे भी जो भी हमारे
कल्चर या सोसाइटी हमें हमें जिस रूप में ढाल रही है। तो चूंकि ये ज्ञान योग का की पहली शर्त यही है कि जितनी भी तरह का आपके पास थॉट्स है या जो कुछ भी है आपके अंदर सबसे क्लीन कर दिया जाता है। और ये सब चीजें जो हैं, वो जो कंडीशनिंग है वो आपको कहीं ना कहीं रोक देती है, बाधा कर देती है। तो इसलिए सारे इस तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, उससे आपको फ्री हो जाना चाहिए और इसके ऊपर हो जाना चाहिए, ट्रांसेंड कर देना चाहिए। तो ये इनकी आइडियलिज्म का दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है। तीसरा है जिसको कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के कॉन्सेप्ट के रूप में उन्होंने इसको रखा है, जिसमें कि जो हमारा, अगर अपने आप को आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें दो एलिमेंट है। एक तो है ऑब्जर्वर, मतलब कि जैसे कि आप अपने थॉट को, इमेज को या ड्रीम को आप अनुभव कर रहे हैं। दोनों चीजें माइंड के अंदर ही हैं, लेकिन आपको ये फील होता है कि मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और कोई चीज है जिसको देख रहे हैं। यानी कोई ड्रीम का सीक्वेंस हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ बातें आप सोच सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स यू जस्ट परसीव इट देयर, ये इट इज देयर। और फिर ये जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व का डिफरेंस है, ये इनके हिसाब से एक समस्या है। और ये डिवीजन जब तक आपके अंदर रहेगा, तब तब आप इसको मानेंगे कि तब तक आप इस ट्रू एक्सपीरियंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस डिवीजन को आप समाप्त कर देते हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व ऐसा कुछ नहीं है, एकमात्र ऑब्जर्वर ही है और कुछ नहीं है दूसरा, तो उसका वो मेडिटेशन और दूसरी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा इस स्टेट तक जा सकते हैं। तो तभी आप जो आइडियलिज्म का जो एक्सपीरियंस है वो कर पाएंगे। फिर उससे ही बात निकल के आती है कि प्रेजेंट में रहने की बात, वर्तमान में जीने की बात। आपने कई बार बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कोटेशंस में भी देखा होगा, लिव इन प्रेजेंट, पास्ट में नहीं रहना है या फ्यूचर में नहीं रहना है। इसका मतलब इतना ही है कि अ, आपको अभी क्या हो रहा है उसका ऑब्जर्वेंट रहना है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी, एंड यू आर एन ऑब्जर्वर। And so you are not dwelling on something that has happened earlier, or that you have gone through, or you are also not uh, designing what will you do in future and how we will act or whatever. तो वो सब चीजें, दोनों तरह के पास्ट और फ्यूचर को आप छोड़ करके जस्ट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ इन एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये अपने लाइफ का जो अभी आप लाइफ को आप केवल प्रेजेंट में अनुभव कर सकते हैं। पास्ट में आपकी मेमोरी हो जाएगी और फ्यूचर में आपका इमेजिनेशन हो जाएगा। तो अगर आप लाइफ को के साथ इंगेज होना चाहते हैं, तो लाइफ मतलब कि माई सेल्फ, मेरा लाइफ, तो मेरे लाइफ के साथ हाउ कैन आई एंगेज विद ओनली इन प्रेजेंट। और आपका लाइफ जो है पीछे का है तो वो मेमोरी है, और आगे का है तो वो आपका इमेजिनेशन। तो वो लाइफ के साथ एंगेजमेंट नहीं हो सकता है। तो प्रेजेंट और प्रेजेंट से भी इनका मतलब प्रेजेंट में के थॉट से नहीं है, क्योंकि थॉट किसी भी रूप में इसी दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट इंगेजिंग, डायरेक्ट देखना कि आपके अंदर क्या हो रहा है, freeing yourself from all kind of things. Then he said, you will experience the enlightenment when you are free from all these things. Then he believed that he love and meaningful relationship तभी हो सकता है जब अपने और दूसरों की डीप अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। वो लव को एक स्टेट ऑफ बीइंग मानते हैं, न कि एक मेयर इमोशन मानते हैं।
अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझाना कि ये स्टेट ऑफ बीइंग और मेयर इमोशन का क्या अर्थ है। बेसिकली ये इनका कहना है कि अ, इसमें जस्ट यू आर लूजिंग योर सेल्फ, मतलब व्हेन यू आर इन लव then you are completely negating yourself and you become uh, what you love। जिस चीज से आपका प्रेम है आप वो हो जाते हैं। सो दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लव। बाकी जो चीजें हैं, लव के बाकी जो भी परिभाषाएं हैं, वो वो सब जो है सो इमोशन है। तो उसके तुलना में अगर आप वो हो जाते हैं जो अ, जो अ, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो वो इनके हिसाब से जो लव है उसका रियल मीनिंग। ऑथोरिटी एंड कन्फर्मिटी की अगर हम बात करें तो ये हमेशा इस पर जोर देते थे कि जो भी अगर ऑथोरिटी है और उसका आपको कंफर्म करना पड़ता है तो उससे उसको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। ऑथोरिटी से मतलब है कि कोई आपको बता रहा है ये रास्ता है, ये काम करो, ये क्यों करो, ये ऐसे करो। तो ये ऑथोरिटी को क्वेश्चन करना और आज्ञा पालन से रेसिस्ट करना है ना। अब वो कह रहे हैं इसलिए सही होगा ऐसा नहीं मानना। तो ये इसको इंडिविजुअल्स को इसके लिए वो इनकरेज करते थे। और इस और वो जेन्यून सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ पर एम्फेसिस करते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शार्प डिपार्चर है, जो आइडियलिस्ट हैं वो गुरु के प्रति फुल डिवोशन की मांग करते हैं। आप चाहे आप फिर दूसरे लोगों को पढ़ेंगे, जैसे आप अगर स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको गुरु शिष्य का एक बहुत ही अलग तरह का बॉन्ड मिलेगा। ही वॉज सन्यासी और ही वॉज committed to his guru। He was actually doing the uh, work designated by his guru। His guru has this vision to spread the message of Hinduism across the uh, countries. So he was carrying out that job. So that kind of connection he had, kind of devotion he had, and but he used to question him. It was also true that even Vivekanand, he never accepted. You must have heard about that incident when uh, Ram Krishna Paramahansa said that I cannot touch money. So he put one coin in his mat, below his mat, and then his body start twitching। और तब लोगों ने उसका वो उसको झाड़ा तो उसके अंदर से सिक्का निकला। So Ramakrishna Paramahansa said he will not accept anything without testing. So that kind of thing was also with Swami Vivekananda also. He also used to confirm first test and discover everything by himself. And similar argument is being given by Krishnamurti also. Then meditation is also a significant role in Krishnamurti philosophy। यहाँ पर वो मेडिटेशन को एक तरीके के रूप में देखते हैं जो कि माइंड को क्वाइट करता है, माइंड मस्तिष्क को शांत करता है, और जो ईगो है, इंडिविजुअल ईगो है, उसको ट्रांसेंड करके और एक डीप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है। फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग भी इसमें देखा जाता है कि जो बाहरी कंडीशनिंग है, एक्सटर्नल कंडीशनिंग है, वो भी उस पर भी ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर बात कर ली है। मुझे लगता है कि थोड़ा एक तरह से रिपीटेशन ही हो गया है कि कल्चर और ट्रेडिशन का को ट्रांसेंड करने पर ही हम लोग कंडीशनिंग से फ्री हो सकते हैं। सेल्फ इंक्वायरी एंड सेल्फ डिस्कवरी आप भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। मुझे लगता है 2 बार पेस्ट हो गया है क्या। देन हॉलिस्टिक एजुकेशन उनका आइडिया था कि एजुकेशन के लिए
हमें हॉलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, और इसके द्वारा जो भी इंडिविजुअल होगा उसको अपने लाइफ के जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको वो फिर से अ, उसको ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, और जिसमें कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, और केवल वो एकेडमिक तक, सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होगा, एज ए पर्सनालिटी उसका पूरा ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हॉलिस्टिक एजुकेशन का इसमें सिस्टम था उनका। ओके, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एजुकेशन। तो नो कंपटीशन और कंपैरिजन, इनका जो एजुकेशन का पर इनका इम्प्लीकेशन है, उसमें ये प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं है कि स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए और कंपटीशन कराया जाए। इस चीज़ के वो स्ट्रांगली खिलाफ थे, और उसकी जगह पर वो ये कहते थे कि जो भी नॉलेज का क्रिएशन है ये कोऑपरेशन में होना चाहिए, और एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करना चाहिए, और उसको सपोर्ट करना चाहिए दूसरे के नॉलेज गेन की प्रक्रिया को। अब ये उनके हिसाब से कंपटीशन और कंपैरिजन जो है सो जेन्युइन लर्निंग और सेल्फ एक्सप्रेशन को हिंडर करता है, उसको उसमें बाधा पहुंचाता है। और ये बहुत हद तक आप अभी के समय में सारे लोग सहमत हैं इस चीज़ से। हालांकि इसको कोई भी एड्रेस करना नहीं चाहता, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह हम लोग कंपटीशन ही करते हैं बेसिकली। और जो एग्ज़ाम का सिस्टम है वो भी एक कंपटीशन का सिस्टम है, और उस रूप में ही इसको देखा जाता है। उसी तरह से जो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड है, इसका जो है वो इनर डिवीजन को समझने के लिए एजुकेशन को उसमें सहायता दे सकता है, जिसमें कि कैसे उसको हैंडल करना है, और कैसे उसको जज करने की बात है ना, जिससे कि वो जो वन हु परसीव्स एंड जजेस एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट इज बीइंग परसीव्ड है ना, इसका ये सेपरेट है, इसको आइडेंटिफाई करना, और फिर उसको जो जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको डाइल्यूट कर देना, ये इस एजुकेशन का एक इनहेरेंट पार्ट है। फिर इंक्वायरी की बात भी उन्होंने एजुकेशन में इस पर जोर दिया कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, जिसका कि क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी उसका इनहेरेंट पार्ट है, इसको वो एक जोर देते थे, और उसके लिए जो चीज़ों के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, और एक कंपैशनेट वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और उसको जानने की कोशिश करना, एक स्पिरिचुअल आउटलुक डेवलप करना स्टूडेंट्स में, ये ये उनका जो एजुकेशन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। फिर ग्लोबल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टूडेंट्स में वो एक ह्यूमैनिटी के बीच का, और जो पूरे प्लानट पर ह्यूमैनिटी है या दूसरे जीव हैं, इन सब के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस है, इसको और इसको बढ़ाना, इस अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना, इस अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करना, ये उनके एजुकेशनल जो उनका पर्सपेक्टिव था उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और वो नेशनलिस्टिक और सेक्टेरियन पर्सपेक्टिव के बिल्कुल खिलाफ थे, बल्कि उनको 4 साल के लिए अमेरिका में उनको बैन किया गया था, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। 40 से 44 तक वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में उनको जाने के से मना कर दिया गया था। एक समय में उस एफबीआई के निगरानी में भी वो आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये आदमी नेशनलिज्म के खिलाफ बोल करके लोगों को वार के खिलाफ कर रहा है, तो उस हिसाब से ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसलिए उनको कुछ समय के लिए उनको साइलेंट कर दिया गया था। तो वो अब चुपचाप से वहाँ 4 साल तक वहाँ चुपचाप से रहे अमेरिका में। इसके बाद अ, जो उनका आइडियलिज्म का जो फीचर था कि
डॉगमा से फ्री रहना। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो भी उनके स्कूल खोले उसमें कोई एक स्पेसिफिक रिलीजियस या फिलोसफिकल बिलीफ को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बिलीफ को भी नहीं। वो स्टूडेंट्स को आ, अपने बिलीफ को इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं। अपने थॉट्स को भी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में उस रूप में नहीं डाला है कि ये सही थॉट है। वो बेसिकली इसको प्रमोट करते हैं कि यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ बिलीफ, और इंडिपेंडेंटली आपको वहां तक की जर्नी पूरी करनी चाहिए। सेल्फ डिस्कवरी पर इनके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी इसको प्रमोट करने के लिए कोशिश की जाती है। अंडरस्टैंडिंग को, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, कराने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से ऑल राउंड एजुकेशन, और जिससे कि सारे स्टूडेंट्स का फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। ये जो इनके स्कूल्स हैं उस ट्रेडिशनल स्कूल्स में ये आर्ट्स पर, स्पोर्ट्स पर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, जिस ऐसे लर्निंग पर जो केवल बौद्धिक नहीं हो बल्कि आपके अनुभव का ज्ञान हो, उस पर फोकस किया जाता है। और इससे लोग वेल राउंड एजुकेशन देने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सारे लेवल पर इनका डेवलपमेंट हो सके। और जैसा कि पहले ही हमने कहा कि उन कंपटीशन में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनके स्कूलों में भी कोई ग्रेडिंग नहीं की जाती है, और ना ही कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। केवल स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लर्निंग में कितना हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और टीचर्स को, जो टीचर आर फैसिलिटेटर्स, ये इनका भी आइडिया था कि टीचर जो है वो सुप्रीम ऑथोरिटी नहीं है नॉलेज का। वो उसको इस चीज के लिए प्रमोट करना चाहिए टीचर को कि वो स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चन करने के लिए उनको प्रेरित करे, और वो स्टूडेंट उससे क्रिटिकली उसके बात को चैलेंज करें, उससे डिबेट करें, डिस्कस करें, और फिर वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। क्लास साइजेज स्मॉल रखा गया है इसमें, ताकि जो पर्सनलाइज और मीनिंगफुल इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो सके। और जिससे और इससे जो भी अध्ययन का की चीज़ें या एक्सपीरियंस है, यानी पुस्तकें हों या क्लासरूम एक्टिविटी हो, उसका वो डीपर एंगेजमेंट होगा। जब कम संख्या में बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा जिम्मेवारी से चीज़ें बढ़ती हैं। ज़्यादा संख्या होने पर कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं कि अपने आप काम हो जाएगा, बाकी लोग कर लेंगे। तो वो नहीं होता है, तो इससे एक कम्युनिटी फॉस्टर होती है छोटे ग्रुप में। और फिर इससे जो अध्ययन का कार्य है, अध्ययन के काम में ज़्यादा इंगेजमेंट होता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि इनको फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है, ना कि ऑथोरिटी फिगर के रूप में। और स्टूडेंट के साथ इनको ओपन डायलॉग में करना होता है, जिसमें कि टीचर्स को क्वेश्चन करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को क्वेश्चन करें, एंड दे थिंक क्रिटिकली, है ना, आलोचनात्मक रूप से सोचें। इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग पर एम्फेसिस है इनके जो भी स्कूल्स हैं। वो क्वेश्चन पूछना अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में, और इस तरह से जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन है उसको प्रमोट किया जाता है। नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस भी इसका, इनके इंस्टीट्यूशंस का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कृष्णमूर्ति खुद भी इन्वायरमेंट और के बारे में बहुत कंसर्न रहते थे। और स्टूडेंट्स को जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ जो ह्यूमन का रिलेशनशिप है उसको अनुभव करने के लिए और उसके महत्व को समझने के लिए वो प्रेरित करते थे।
फिर ग्लोबल कम्युनिटी का क्रिएशन करना भी उनका एक पर्पस था, जिसमें कि टॉलरेंस और कोऑपरेशन क्रिएट हो सके, उनमें डेवलप हो सके। तो ये सब बातें थी। अब अ, आप कुछ अगर चर्चा करना चाहें तो क्वेश्चन के लिए ओपन है।